Hello everyone, myself is Yogesh Gupta, YG, faculty in Mathematics, Redavan Institute, Kota. Here I will discuss the JEE mains paper of Mathematics held on 26 February, second shift. तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि A1 vector and A2 vectors, two vectors are given, they both are collinear, and we know when the two vectors are collinear, x upon 1 will be equal to minus 1 upon y is equal to 1 upon z, and say this is equal to lambda. So from here we get x is equal to lambda, y is equal to minus 1 upon lambda, and z is equal to 1 by lambda. Then possible unit vector parallel to the vector xi cap plus yj cap plus zk cap. So unit vector, say it is n cap. So n cap is equal to plus minus xi cap plus yj cap plus zk cap upon square root of x square plus y square plus z square. ठीक है, अब ये जो x y z की वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन्हें यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, सो वी गेट प्लस माइनस लैम्डा आई कैप माइनस 1 बाय लैम्डा जे कैप प्लस 1 बाय लैम्डा के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर. और जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, so it will be plus minus, if I take 1 by lambda from here as a common factor, we get lambda square I cap minus j cap plus k cap upon, यहाँ स्क्वायर रूट में से 1 by lambda स्क्वायर बाहर निकाल लिया मैंने, so it is 1 by lambda स्क्वायर रूट में lambda raised to power 4 plus 2. So that is the required unit vector, and now substitute the value of lambda here and get one of the option. So if I put here lambda is equal to 1, so the required vector will be plus minus I cap minus j cap plus k cap upon square root of 3, and it is given in the fourth option, and therefore the answer is I cap minus j cap plus k cap upon root 3, which is given in the fourth option. तो बच्चों बिल्कुल ये एक आसान क्वेश्चन था. Now in question number 2, we are given the set A which contains the 10 natural numbers, 1 से लेकर 10 तक के natural numbers हैं. f हमने एक फंक्शन डिफाइन किया a से a पर, और f of k is equal to k plus 1 when k is odd, and f of k is k when k is even, right? तो यहां से अपने को ये पता चल रहा है कि मैं k की कुछ भी वैल्यू रख दूं तो जो f of k बनेगा वो even नंबर बनेगा. वो if I put k is odd, odd plus 1 even, k is even, तो यहां से तो even मिल ही रहा है अपने को. यानी यहां से क्या पता चला कि हमने k की कोई भी नेचुरल वैल्यू यहां डाली तो जो f k बन रहा है वो एक इवन नंबर बन रहा है. Then the number of possible functions g defined from a to a such that g of fx is equal to fx. So g of fx is equal to fx, and what is fx? That is the even number. तो जो सेट A है उसमें 10 नेचुरल नंबर्स हैं, 10, और जो सेट A है इसमें भी 10 नेचुरल नंबर्स हैं, 10 नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब यहां जो x है इट कैन टेक वैल्यू फ्रॉम दिस सेट. हियर x कैन टेक वैल्यू फ्रॉम दिस सेट, और जो आउटपुट बनेगा वो क्या बनना चाहिए? इवन नंबर बनना चाहिए. यानी यहां से जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उसकी मैपिंग इवन नंबर से होनी चाहिए. और इवन नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10. There are 5 even numbers.
So this element can be mapped in 10 ways, not 10 ways, कि this element can be mapped in 5 ways, कि 1 की मैपिंग 2 से हो जाए या 4 से हो जाए या 6 से हो जाए या 8 से हो जाए या 10 से हो जाए, 5 ways. 2 it can map in 5 ways again, 3 it can map in 5 ways again. यानी कि यहां जो हर एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को हम 10 ways में मैप कर सकते हैं, एंड therefore the number of functions will be 10 raised to power of 5. So our answer is 10 raised to power 5, which is given in the first option. So that is the answer. In question number 3, f is a function defined from R to R, और fx की ये definitions अपने को दे रखी हैं. If fx is continuous on R, then we have to find the value of a plus b, right? So when this function is continuous for all the real values, we will check its continuity at x is equal to -1 at x is equal to 1. ठीक है ना, अब वो दे रखा है कि x is equal to -1 और x is equal to 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है. ठीक है, सो f of -1 माइनस should be equal to f of -1 प्लस. तो -1 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें यूजिंग दिस डेफिनेशन, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 sin π/2, यानी कि 2 के बराबर. -1 पर हम राइट हैंड लिमिट निकालें यूजिंग दिस डेफिनेशन, सो दैट विल बी mod ऑफ a -1 plus b. So from here a -1 plus b is equal to plus -2. So a plus b is equal to, it can be 3 or it is -2 plus 1, that is -1, right? अब x is equal to 1 पर कंटिन्यूटी की बात करें तो x is equal to 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है that is mod of a plus 1 plus b, और x is equal to 1 पर जो राइट हैंड लिमिट है that is equal to 0. So from here a plus b is equal to -1. So common value of a plus b in these two, that is -1, and therefore the value of a plus b is equal to -1, which is given in the second option. So second option is the correct answer. Now in this question number 4, we have to find f of e plus f of 1 by e, and this is equal to integral 1 से e ln t upon 1 plus t dt plus integral 1 से 1 by e ln t upon 1 plus t dt, and this is equal to i1 plus i2. यानी ये वाला जो इंटीग्रल है इसे मैंने i2 का हुआ है मैंने. ठीक है बच्चों, अब जो i2 है दिस इज इंटीग्रल 1 से 1 by e ln t upon 1 plus t dt. यहां मैं t की जगह 1 by z सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सो dt इज माइनस dz by z स्क्वायर. सो नाउ इट विल बिकम 1 से e ln t का मतलब ln of 1 by z, so that is minus ln z upon 1 plus 1 by z into minus dz upon z स्क्वायर. ठीक है बच्चों, और जब इसे हमने सिंप्लीफाई किया इट इज 1 से e, वी आर गेटिंग ln z अपॉन z into 1 plus z dz. और वेरिएबल तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है दैट विल रिमेन सेम. तो यहां z की जगह मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने. सो 1 से e ln t अपॉन t इंटू 1 प्लस t dt. तो ये अपना इंटीग्रल i2 हो गया. ठीक है, अब अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो i1 प्लस i2 की निकालनी है. तो जो i1 प्लस i2 है, अब i1 1 से e ln t अपॉन 1 प्लस t, और जो i2 है वो भी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम है 1 से e ln t अपॉन t इंटू 1 प्लस t dt. सो i1 प्लस i2 कैन बी रिटर्न एज कि इंटीग्रल 1 से e ln t
अपॉन 1 प्लस टी प्लस ln t अपॉन t इंटू 1 प्लस टी dt। सो इट इज इंटीग्रल 1 से e, और जब इसे हमने सिंप्लीफाई किया सो वी विल गेट ln t अपॉन t dt। इंटीग्रेट करने के लिए ln t को हमने u माना, सो 1 अपॉन t dt विल बी इक्वल टू du एंड देयरफॉर इट विल बिकम u du। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करें, t की जगह जब 1 रखा तो ये 0 हो गया और e रखा तो यहाँ 1 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2। So it is simplified to 1 by 2. So the value of f of e plus f of 1 by e is 1 by 2, which is given in the third option. तो बच्चों ये क्वेश्चन पहले AI-EEE में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। Now we come to question number 5. In this question, a natural number has prime factorization given by n is equal to 2 raised to power of x, 3 power y, 5 raised to power of z, और जो y और z हैं they are such that कि y plus z is equal to 5 and 1 upon y plus 1 upon z is equal to 5 upon 6, or it is y plus z upon yz is equal to 5 upon 6 and y plus z is 5, so 5 upon yz is equal to 5 upon 6 and therefore yz is equal to 6. So y plus z is 5 and yz is equal to 6. जब हमने इसे सॉल्व किया we get y is equal to 2 and z is equal to 3. So n becomes 2 raised to power of x, 3 raised to power of 2 and 5 raised to power of 3. That is the n. And we have to find the number of odd divisors. So number of odd divisors का मीनिंग कि जब हम selections करें हम तो उसमें एक भी 2 select नहीं करना है. So number of odd divisors will be 2 plus 1 into 3 plus 1 and this is equal to 12. So answer is the fourth option. In question number 6 कि fx is sin inverse x, gx हमें दे रखा है और g2 is equal to limit x tends to 2 gx. So gx is x square minus x minus 2 upon 2x square minus x minus 6, और g2 is limit x tends to 2 x square minus x minus 2 upon 2x square minus x minus 6. अब इसकी लिमिट हम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं और यह डायरेक्ट हम लॉपिटल रूल से निकाल सकते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू 2, डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर को 2x minus 1, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया 4x minus 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3/7. ठीक है, तो अपना जो gx है दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 when x is not equal to 2 and this is equal to 3/7 when x is equal to 2. यानी ऐसा लिखा होने का मतलब ये हो गया कि अपना जो gx है that is always a continuous function. ठीक है, and now we have to find the domain of the function fog x. So when we have to find the domain of fog x, it means कि gx should lie in the domain of f. So gx का meaning x square minus x minus 2 upon 2x square minus x minus 6 and that should be lying between minus 1 से 1, क्योंकि जो fx है sin inverse x उसका डोमेन है minus 1 से 1. So that should be greater than equal to minus 1 less than equal to 1. So now you can solve this in equation and get the answer
given in the third option. In question number 7th, the triangle of maximum area that can be inscribed in a circle of radius r, ठीक है ना, यानी एक सर्कल है, रेडियस r है और इसमें हमने ट्राइंगल इंस्क्राइब किया ABC. Say this is O. ये रेडियस R है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल ABC का एरिया कब मैक्सिमाइज होगा ये अपने को देखना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of this triangle plus area of this triangle plus area of this triangle, right? So area of this triangle is half of r into sine of this angle, and this angle will be double of this angle, यानी ये वाला एंगल C है तो ये कितना हो गया 2C हो गया, and therefore the area of this triangle becomes half of r square sine 2C plus area of this triangle that is half r square sine 2A. और बच्चों ऐसे ही जो तीसरा ट्राइंगल है उसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ r स्क्वायर साइन 2B. So the area is r square by 2 into sine 2A plus sine 2B plus sine 2C. And in a triangle we know कि sin 2A plus sin 2B plus sin 2C is 4 sin A sin B sin C. So it is 2r square sin A sin B and sin C. ठीक है बच्चों, अब जो एरिया है वो मैक्सिमम कब होगा? तो एरिया मैक्सिमम तब होगा जबकि ये ट्राइंगल कैसा हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में साइन ए साइन बी साइन सी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ABC ईच एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 3 60 डिग्री के बराबर हो. सो मैक्सिमम एरिया इज 2r स्क्वायर साइन 60 डिग्री दैट इज √3 by 2 √3 by 2 and again √3 by 2. So it is equal to 3√3 upon 4 r square. So that is the maximum area of the triangle. और मैक्सिमम एरिया कब है, जबकि ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल हो. ठीक है, अब अपने को जो निकालना है उस ट्राइंगल की साइड निकालनी है. तो साइड लेंथ अगर मैं x के बराबर मान लूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √3 by 4 साइड स्क्वायर, यानी कि √3 by 4 x स्क्वायर. और हमने जो एरिया निकाला है इट इज 3√3 अपॉन 4 r स्क्वायर. तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो x इज इक्वल टू √3r. सो फाइनली कि रेडियस r के सर्कल में जो हमने ट्राइंगल इंस्क्राइब किया उसका मैक्सिमम एरिया हमें तब मिलेगा जबकि वो ट्राइंगल ABC कैसा हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, और उस ट्राइंगल की जो साइड है वो √3r के बराबर होगी, which is given in the third option. So third option is the correct answer. In question number 8, L is the line obtained from the intersection of the two planes. These are the two planes. So if we find the direction ratios of that line, say they are ABC, let direction ratios of line L are ABC, and therefore A plus 2B plus C is equal to 0, और 0A plus
1b plus 2c is equal to 0. So it is 3 minus 2 and this is 1. So direction ratios of line L are 3 minus 2 and 1. ठीक है, यानी कि we are converting the equation of line which is given in the non-symmetrical form into the symmetrical form. अब सिमेट्रिकल फॉर्म में लाने के लिए हमें लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए जो कि हमने निकाल लिए 3 माइनस 2 और 1 है. ठीक है, अब एक पॉइंट और चाहिए अपने को, से z इज इक्वल टू 0. सो व्हेन z इज 0 वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 4 एंड व्हेन z इज 0 एंड y इज इक्वल टू 4 वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू -2 and therefore the equation of line L in the symmetrical form is x plus 2 upon 3 is equal to y minus 4 upon minus 2 is equal to z minus 0 upon 1. And any point on this line can be taken as 3 lambda minus 2 minus 2 lambda plus 4 and lambda. ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि दिस इज द लाइन L और एक पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा. And this point alpha comma beta comma gamma is the foot of the perpendicular drawn from the point 3 comma 2 comma 1. Then we have to find the value of 21 times alpha plus beta plus gamma. So mainly we have to find the foot of the perpendicular of the point Q on this line L. So any point on this line can be taken as 3 lambda minus 2 minus 2 lambda plus 4 and lambda. So say this is alpha, this is beta and this is gamma. ठीक है, तो मैं PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिख सकता हूं. So what are the direction ratios of PQ line? That is 3 lambda minus 2 minus 3. So 3 lambda minus 5. Minus 2 lambda plus 4 minus 2. That is minus 2 lambda plus 2. And lambda minus 1. और ये जो लाइन है L है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 3 minus 2 and 1. And both the lines are perpendicular. So when both the lines are perpendicular, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is 0. So we get 3 times 3 lambda minus 5 minus 2 times minus 2 lambda plus 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया lambda minus 1 के साथ. So lambda minus 1 and this is equal to 0. So we are getting 9 lambda plus 4 lambda plus lambda. So that is equal to 9 plus 1, that is 10 plus 4, यानी कि 14 lambda. And it is minus 15 minus 4, that is minus 19, minus 1 minus 20. So this is equal to 20. So from here we get lambda is equal to 10 by 7. So when lambda is 10 by 7, so alpha becomes 3 lambda minus 2 का मीनिंग हो गया 30 upon 7 minus 2. So that is equal to 30 minus 14, that is 16 by 7. Beta is minus 2 lambda. तो minus 2 lambda का मीनिंग हो गया कि minus 20 by 7 plus 4 and that will be equal to 8 by 7. And gamma is equal to lambda, that is 10 by 7. So alpha is 16 by 7,
बीटा इज 8/7 एंड गामा इज 10/7। हमें चाहिए इन तीनों का सम, तो इन तीनों का सम दैट विल बी इक्वल टू 16 प्लस 8 24 प्लस 10 that is 34, so 34/7 and therefore it will be 21 into 34/7, so it is equal to 102. So answer will be the fourth option. So answer is 102 which is given in the fourth option. So now we come to question number 9th. तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम ट्रुथ टेबल से कर सकते हैं या वेन डायग्राम से कर सकते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से कर रहा हूं। There are three sets A, B and C. Say this is the region number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं A and negation of B. So A and negation of B. So A and negation of B, तो उसमें कौन सा रीजन होगा? That is 1 and 4. That is 1 and 4. इसके बाद ये ले लेते हैं negation of A. So negation of A, that will be the reason 3, 6, 7, 8. ठीक है, अब ये वाला लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ सी और नेगेशन ऑफ सी एंड ए और बी। सो ए और बी, दैट विल बी द रीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6। और नेगेशन ऑफ सी, that will be the reason 1, 2, 3, 8, and therefore negation of C and A or B means we have to take the intersection of these two. So when we take the intersection, that is 1, 2, 3। ठीक है बच्चों, तो A and negation of B, that is the reason number 1 and 4. Negation of A, that is reason number 3, 6, 7, 8, and negation of C and A or B, that is the reason number 1, 2, 3। और अपना जो F1 है वो इन तीनों रीजन्स का यूनियन है। So F1 is, now take the union of all these three regions, so that is coming out 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, यानी 5 नहीं आ रहा। तो जब 5 नहीं आ रहा तो ये वाला रीजन बचा हुआ है, यानी कि अगर F1 में अगर 5 भी आ जाता तो इसका मतलब कि जो F1 है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाता और उस केस में ये टोटोलॉजी हो जाता। लेकिन अभी जो F1 है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो रीजन नंबर 5 है वो प्रेजेंट नहीं है, एंड देयरफॉर F1 is not the tautology. Therefore F1 is not tautology. अब हम F2 की बात करें। F2 में सिर्फ दो सेट्स हैं A और B। तो पहले तो हम ये देखें कि B implies negation of A. So that is logically equivalent to negation of B or negation of A. And negation of A or negation of B, that can be written by De Morgan's law, that is negation of A and B. So negation of B or negation of A by De Morgan's law can be written as negation of A and B. ठीक है, अब हम यहाँ पर A और B ये दो सेट्स ले रहे हैं।
So it is region 1, 2, 3 and 4. तो A और B, that will be the region 1, 2, 3, right? और दूसरा है B implies negation of A. तो इसमें कौन सा रीजन होगा कि that is negation of A and B. तो जो A and B है वो 2 नंबर का रीजन है और इसका चाहिए हमें नेगेशन. So that will be the reason 1, 3 and 4. So B implies negation of A is the reason 1, 3 and 4. And we have to find the union of these two. तो इन दोनों का यूनियन जो कि F2 है, so that will be the reason 1, 2, 3 and 4. And you can see this F2 is the universal set. किसके बराबर हो गया वो? Universal set के बराबर. It contains all the regions 1, 2, 3 and 4 and therefore F2 is a tautology. So F2 is tautology. तो बच्चों जो F1 है वो tautology नहीं है और जो F2 है वो tautology है and therefore third option is the correct answer. Now in question number 10th, slope of the tangent line to a curve at any point is given by this equation कि dy by dx is equal to x y square plus y upon x. So we can write this equation as x dy minus y dx is equal to x y square dx, or it is x dy minus y dx upon x square is equal to y square upon x dx. तो ये लिखा हुआ है d of y upon x is equal to y square upon x dx, or we can write this as कि d of y upon x upon y square upon x square is equal to x dx. ठीक है, तो y upon x को अगर मैं t कहूं मैं तो ये dt by t square लिखा हुआ है और जब उसे इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट माइनस 1 अपॉन टी. तो माइनस 1 अपॉन टी का मीनिंग यहां पर क्या हो गया कि माइनस 1 अपॉन एंड व्हाट इज टी? टी इज y अपॉन x and that is equal to x square by 2 plus c. So from here we get minus x upon y is equal to x square upon 2 plus c. ठीक है, अब इन्होंने दे रखा है कि जो कर्व है, this curve is passing through the point of intersection of these two lines. If the curve intersect the line x plus 2y is equal to 4 at x is equal to minus 2, यानी कि जो point of intersection है that is when x coordinate is minus 2, so y coordinate is 3. So minus 2 comma 3 को यहाँ satisfy कराएं, so it will be 2 by 3 is equal to 4 by 2 यानी कि 2 plus c, which implies c is equal to 2 by 3 minus 2, that is minus 4 by 3. तो बच्चों जो कर्व है it becomes कि minus x upon y is equal to x square by 2 minus 4 by 3. अब अपने से पूछा है कि जो पॉइंट है 3, y अगर इस कर्व के ऊपर आए then what is the value of y? If 3, y lie on this curve then what is the value of y? ठीक है, तो 3, y को यहाँ सेटिस्फाई करा दो कि x की जगह 3 और y की जगह y रहने दें. So it becomes minus 3 upon y is equal to 9 by 2 minus 4 by 3. So it is 19 by 6 and therefore y is equal to minus 18 upon 19. So the value of y is minus 18 upon 19 and which is given in the third option. So third option is the correct answer. In question number 11,
if the locus of the midpoint of the line segment from the point 3, 2 to a point on the circle x square plus y square is equal to 1 is a circle of radius r, then we have to find the value of r. तो बच्चों एक आपने सर्कल दे रखा है x square plus y square is equal to 1 and one of the point say it is the point 3, 2 और इस कर्व के ऊपर कोई भी मैंने पॉइंट लिया से x, y, जो QP का मिड पॉइंट है इसका लोकस अपने को निकालना है एंड सपोज दिस इज h, k. ठीक है. सो बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला वी कैन राइट कि 2h इज इक्वल टू x प्लस 3 and 2k is equal to y plus 2. So from here get the values of x and y and those x and y will satisfy this equation. So x square plus y square is equal to 1. So we get कि 2h minus 3 का whole square plus y square का meaning from here 2k minus 2 का whole square and this is equal to 1. Or this equation can be written as h minus 3 by 2 whole square plus k minus 1 का whole square is equal to 1 by 4. So the required locus is x minus 3 by 2 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 1 by 4. यानी जो required locus है कि that is a circle whose center is 3 by 2 comma 1 and radius is 1 by 2. So radius is 1 by 2 and that will be the answer which is given in the second option. So second option is the correct answer. In question number 12, we are given the three equations or we have to comment whether the equations are consistent or infinite solutions like this. ठीक है. So first we find D. So D is 1, 2, minus 3, 2, 6, minus 11, 1 minus 2 and 7 and this is equal to 0. जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने को 0 मिल रही है D. Now D1 is the determinant A, B, C 2, 6 minus 2 and this is minus 3, minus 11 and 7. ठीक है. तो इसे एक्सपेंड करके देखें. 20A minus 2 times 7B plus 11C minus 3 times minus 2B minus 6C. So this is equal to 20A, यहाँ से minus 14B आएगा और ये plus 6B. So that is minus 8B. यहाँ से minus 22C आएगा और plus 18C. So that is minus 4C. So this is equal to 4 times 5A minus 2B minus C. That is your D1. ठीक है. और इसी तरह से हम D2 निकालें. So D2 will be 1, 2, 1 A, B, C minus 3, minus 11 and 7. So it is 7B plus 11C minus 14A minus 11A minus 6C plus 3B. So that is simplified to minus 25A plus 10B plus 5C, or it can be written as minus 5 times 5A minus 2B minus C. तो जो D2 है that is equal to minus 5 times 5A minus 2B minus C.
we find D3. So D3 is 1, 2, 1, 2, 6, minus 2, and here ABC. So it is 6C plus 2B minus 2 times 2C minus B plus A times minus 10. तो बच्चों ये सिंप्लीफाई होने पर आ रहा है माइनस 10A प्लस 4B प्लस 2C and this is equal to 5A minus 2B minus C. So D3 is minus 2 times 5A minus 2B minus C. तो D 0 है, तो जब D 0 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन तो अपने को नहीं मिल सकता, ठीक है। एंड व्हेन D is 0 we can get the infinite solutions or we can get the no solution. नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी कि D1, D2, D3 में से कम एक कोई नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो D1, D2, D3 तीनों हैं वो तीनों यहाँ पर सेम दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर हम नो सॉल्यूशन की बात करें हम यहाँ पर, तो वो तभी पॉसिबल होगा जबकि 5A माइनस 2B माइनस C शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कि 5A माइनस 2B माइनस C शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऐसी यहां पर कोई कंडीशन यहां पर नहीं दे रखी है। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल व्हेन D0 एंड D1, D2, D3 आर आल्सो 0। सो जब D1, D2, D3 को जब हम 0 करेंगे, सो वी विल गेट 5A इज इक्वल टू 2B प्लस C। इफ 5A इज इक्वल टू 2B प्लस C एंड देयरफॉर द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। In question number 13th, tan inverse A plus tan inverse B is equal to pi by 4। जो A और B है वो 0 और 1 के बीच में है, यानी A into B will be less than 1। So when A into B is less than 1, so tan inverse A plus tan inverse B is equal to tan inverse A plus B upon 1 minus AB, and that is equal to pi by 4। So A plus B अपॉन 1 माइनस AB इज इक्वल टू 1 और A प्लस B इज इक्वल टू 1 माइनस AB। सो A प्लस B प्लस AB प्लस 1 इज इक्वल टू 2। वी कैन राइट लाइक दिस एंड फ्रॉम हियर जब हमने फैक्टर्स किए, सो 1 प्लस A प्लस B इंटू 1 प्लस A इज इक्वल टू 2। सो वी गेट द रिलेशन बिटवीन A एंड B एज कि 1 प्लस A इंटू 1 प्लस B इज इक्वल टू 2। अब बच्चों ये जो सीरीज दे रखी है इसे देखें हम, आई कैन राइट दिस सीरीज एज A माइनस A स्क्वायर बाई 2 प्लस A क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं B माइनस B स्क्वायर बाई 2 प्लस B क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। अब दोनों सीरीज को बड़े हम ध्यान से देखें तो जैसे लिमिट्स में हम पढ़ते हैं ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ln 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। तो यहां ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है उसी तरह से लिखा हुआ है। सो दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस ए एंड सिमिलरली इट इज द एक्सपेंशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस बी। सो इट बिकम्स ln ऑफ 1 plus A into 1 plus B, and 1 plus A into 1 plus B that we have find out here, that is 2, and therefore the summation of this series is equal to ln 2. So answer is ln 2, and which is given in the first option. So first option is the correct answer. So now in question number 14th, first we assume 2n plus 1 is equal to r, यानी n is equal to r minus 1 upon 2. So this is equal to sigma
एन स्क्वायर का मीनिंग आर माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 6n, तो 6n का मीनिंग हो गया 6 टाइम्स r माइनस 1 अपॉन 2, सो दैट विल बी 3 टाइम्स r माइनस 1 प्लस 10 अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, और n अगर 1 है तो r 3 मिलेगा, n अगर 2 है तो r 5 मिलेगा, यानी जो r की जो वैल्यूज हैं वो ऑड नंबर्स हैं 3, 5, 7 लाइक दिस। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 प्लस 12r माइनस 12 प्लस 40 अपॉन r फैक्टोरियल। एक 1 अपॉन r आ रहा है, 1 अपॉन 4 आ रहा है, तो 1 अपॉन 4 को हमने बाहर रख दिया। सो 1 अपॉन 4 सिग्मा, इट इज बिकमिंग r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 29 अपॉन r फैक्टोरियल, और इट कैन बी रिटन एज 1 by r sigma r into r minus 1 plus 11r plus 29 upon r factorial, और इसे जब हमने ब्रेक किया so we get 1 by 4 sigma, it is 1 upon r minus 2 factorial plus 11 times sigma 1 upon r minus 1 factorial plus 29 times sigma 1 upon r factorial. So this is equal to, ठीक है बच्चों। अब इसे जब मैं एक्सपेंड करूंगा 1 अपॉन 4, जैसे r की जगह अपने को क्या रखना है 3, 5, 7, तो जब r की जगह मैंने 3 रखा वी गेट 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस r की जगह मैंने 5 रखा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, जब r की जगह मैंने 7 रखा सो वी गेट 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो पहला ब्रैकेट है उसमें सीरीज आ रही है किस टाइप की 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस 11 टाइम्स। अब जो दूसरी सीरीज है फिर r की जगह 3 रखा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, r की जगह 5 रखा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस 29 टाइम्स 1 अपॉन r फैक्टोरियल, यानी कि 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो अपना एक्सपेंशन है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, तीसरा एक्सपेंशन 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो इन एक्सपेंशंस की वैल्यूज हम कैसे निकालें? ठीक है, तो आप इस तरह से देखें कि e रेज टू पावर ऑफ x का एक्सपेंशन इट इज 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। x की जगह मैंने यहां 1 सब्स्टिट्यूट किया तो e अपने को मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, x की जगह मैंने यहां -1 रखा तो e रेज टू पावर ऑफ -1 यानी 1 अपॉन e, सो दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब जैसे हमें ये जो पहली सीरीज चाहिए 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन,
हमें चाहिए 1/1 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये e है और ये 1/e है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, e माइनस 1/e अगर हम यहां से निकालें, सो दैट विल बी 2 टाइम्स 1/1 फैक्टोरियल। ये जो 1/2 फैक्टोरियल वाला पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये जो पहला जो एक्सपेंशन यहां पर अपने को दिख रहा है यहां पर कि 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो इसकी जगह तो इसे यूज करके हम लिख सकते हैं कि e माइनस 1/e डिवाइडेड बाई 2। So now this is equal to 1/4. In place of this, I am writing e minus 1/e divided by 2 plus 11 times. ठीक है, अब ये वाली सीरीज क्या होगी? 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो फिर आप यूं देखें कि मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो e प्लस 1/e इज इक्वल टू 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि अपने को मिलेगा 2 टाइम्स 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यानी ये वाला जो पार्ट है ये 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल का समेशन, वो यहां से क्या तो हुआ दिख रहा है e plus 1/e minus 2 whole divided by 2. So here we write e plus 1/e minus 2 divided by 2. ठीक है, अब आगे चलें, ये लिखा है प्लस 29 टाइम्स 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यूं देखें कि 1/3 फैक्टोरियल हमें कब मिलेगा, 1/5 फैक्टोरियल हमें कब मिलेगा, जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करने से e माइनस 1/e इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अपने को जो चाहिए वो 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, ये चीज चाहिए अपने को। सो द वैल्यू ऑफ दिस समेशन आप यहां से देख सकते हैं कि दैट विल बी e माइनस 1/e होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। सो 29 टाइम्स e माइनस 1/e होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो बच्चों ये पूरा आप इसका एलसीएम लेके और इसे आप सिंप्लीफाई करें, सो यू विल गेट द सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन दिस क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू a, x fa माइनस a fx अपॉन x माइनस a 0/0 के इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है, तो हमने LH रूल यूज किया, लॉपिटल रूल। सो लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, सो वी गेट f ऑफ a माइनस a f डैश x अपॉन 1। सो वी गेट द लिमिट f ऑफ a माइनस a टाइम्स f डैश a, और f ऑफ a इज गिवन 4 माइनस a times f dash a, that is 2, and therefore it is 4 minus 2a, which is given in the second option. So second option is the correct answer. In question number 16th, we are given a point A 1,4, B is the point 1, minus 5, and P is a point on the circle whose center is 1, and radius is 1. So any point on this circle can be taken as 1 plus
cos theta comma 1 plus sin theta. And now we find PA square. तो PA square का मतलब P पॉइंट का A पॉइंट 1,4 से डिस्टेंस. So that is cos square theta प्लस sin theta माइनस 3 का होल स्क्वायर. So जब इसे हमने सिंप्लीफाई किया we will get 1 plus 9 minus 6 sin theta. So that is 10 minus 6 sin theta. Now we find PB square. So PB square का मतलब P पॉइंट का B पॉइंट 1,5 से डिस्टेंस का स्क्वायर. So that is coming out to be cos square theta plus 6 plus sin theta whole square. और इसे जब सिंप्लीफाई किया हमने तो यहाँ से 36 आएगा और cos square theta plus sin square theta 1 हो जाएगा. So that will be 37 plus 12 sin theta. और PA square plus PB square that is equal to 47 plus 6 sin theta. और इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने को मिलेगी जब sin theta 1 के बराबर होगा. So this will be maximum. It is maximum when sin theta is equal to 1 means theta is equal to pi by 2. और बच्चों जब थीटा जब pi by 2 हो गया तो ये जो P पॉइंट है that will become 1, 1 plus sin pi by 2 that is 1,2. तो जो P पॉइंट है वो 1,2 है, A पॉइंट 1,4 है and B point is 1,-5. So all these points are lying on the line x is equal to 1 means all these points will be the collinear points. So answer is given in the first option, that is a straight line. So बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में 1, 3, 5 एक पॉइंट दे रखा है जिसकी कि हमें 4x minus 5y plus 2z is equal to 8 एक प्लेन है उसमें इमेज निकालनी है. तो इसके लिए तो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला भी होता है. सो अल्फा माइनस 1 अपॉन 4 is equal to beta minus 3 upon minus 5 is equal to gamma minus 5 upon 2 and that is equal to minus 2 times 4 minus 15 plus 10 minus 8 upon 16 plus 25 plus 4. So alpha minus 1 upon 4 is equal to beta minus 3 upon minus 5 is equal to gamma minus 5 upon 2 that is equal to, इसे simplify करें, so it is 4 minus 15 that is minus 11 plus 10 minus 1 that is minus 9 upon 45 and that is equal to 2 by 5. So from these two ratios we get alpha minus 1 is equal to 8 by 5. So alpha is equal to 13 by 5. From these two we get beta minus 3 is equal to minus 2. So beta is equal to 1 and gamma minus 5 upon 2 is equal to 2 by 5 यानी gamma is equal to 5 plus 4 by 5 29 upon 5. So alpha is 13 upon 5, beta is 1 and gamma is 29 upon 5 and therefore the value of the expression 5 times alpha plus beta plus gamma. So that will be 13 plus 29, 13 by 5 plus 29 by 5 plus 1 and this is equal to 5 times 13 plus 29 plus 5 upon 5 and this is equal to 47. So its answer should be 47
which is given in the first option. Now in question number 18, differentiating both the sides, so f dash x is equal to e raised to power of x fx plus e raised to power of x. So what we get, f dash x is equal to e की power x fx plus e की power x, or we can write f dash x is equal to so f dash x upon fx plus 1 is equal to e raised to power of x. ठीक है बच्चों, अब दोनों साइड्स को हमने इंटीग्रेट किया, तो इसका जो इंटीग्रल है दैट विल बी ln ऑफ fx plus 1 is equal to e raised to power of x plus c. ठीक है, अब यहां से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x अगर 0 के बराबर है तो f ऑफ 0 की वैल्यू यानी y की वैल्यू जो हमें मिल रही है, जब x की जगह 0 यहां रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x की जगह 0 यहां रखा तो 1 हो गया, तो f ऑफ 0 1 है। तो इस कंडीशन को यूज करके हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब मैंने x की जगह 0 मैंने यहां रखा, सो वी गेट f0 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो 2 इज इक्वल टू ln 2 इज इक्वल टू x की जगह 0 रखा है यहां पर, सो वी गेट 1 प्लस c एंड देयरफॉर c इज ln 2 minus 1, and therefore it can be written as ln of fx plus 1 is equal to e raised to power of x plus ln 2 minus 1, or fx plus 1 is equal to e raised to power of e raised to power x plus ln 2 by e. It can be written as ln 2 by e, or it is e raised to power e की power x into e की power ln of 2 by e, or it can be written as e raised to power x into this is 2 by e, and therefore fx is equal to 2 times e raised to power of e की पावर x माइनस 1, ये वाला पार्ट लिखा मैंने, और फिर ये माइनस 1. सो fx इज इक्वल टू 2 टाइम्स e raised to power of e raised to power x minus 1 which is given in the first option. So first option is the correct answer. In question number 19th, A1 is the area of the region bounded by the curve y is equal to sin x, y is equal to cos x and the y-axis in the first quadrant. Y is equal to sin x and y is equal to cos x in the first quadrant. ठीक है बच्चों, तो जो यहाँ पर जो A1 है दैट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू cos x एंड y एक्सिस, ये वाला रीजन, एंड दिस विल बी द पॉइंट पाई बाई 4, इट इज द पॉइंट पाई बाई 2. ठीक है, तो पहले हम ये A1 निकाल लेते हैं. सो A1 इज the integral from 0 से pi by 4 upper curve minus lower curve, and what is the upper curve? That is cos x, lower curve is sin x, so cos x minus sin x, and that is equal to sin x plus cos x, or limits of integration 0 से pi by 4. ठीक है, तो जब x की जगह पाई बाई 4 रखा तो वी आर गेटिंग 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई रूट 2 यानी कि रूट 2 माइनस, और जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, सो इट इज रूट 2 माइनस 1. तो जो A1 है दैट इज रूट 2 माइनस 1.
अब आगे लिखा हुआ है A2 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y is equal to sin x, y is equal to cos x and the x axis, y is equal to sin x, y is equal to cos x and the x axis and x is equal to pi by 2 means we have to find this much area. ये वाला एरिया निकालना है. That is your A2. So A2 is that is integral 0 से pi by 4 this curve that is sin x plus integral pi by 4 से pi by 2 this curve and that is cos x. So it is minus cos x 0 से pi by 4 plus sin x pi by 4 से pi by 2. So it is cos pi by 4 1 by root 2 minus 1 plus sin pi by 2 is 1 minus sin pi by 4 1 by root 2. So we are getting 1 plus 1 यानी कि 2 और minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 that is minus 2 by root 2 and that is minus root 2. तो बच्चों जो A2 है that is 2 minus root 2 और A1 is रूट 2 माइनस 1. तो अपना जो ये फर्स्ट ऑप्शन है दैट विल बी द आंसर. अगर हम यहां से A1 अपॉन A2 निकालें A1 अपॉन A2 सो दैट इज रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 2. सो इट इज रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1 सो दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2. तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ये दे रखा है A1 अपॉन A2 इज 1 बाई रूट 2 और जब A1 प्लस A2 निकालेंगे ये A1 है ये A2 है और दोनों का जब सम मैंने निकाला तो वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है. वो A1 प्लस A2 इज 1. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो इन दिस क्वेश्चन a 7-digit number is formed using the digits 3 3 4 4 4 5 5. So we can count the numbers, that is the number of elements in the sample space. तो 7 digits के हम कितने नंबर बना सकते हैं यूजिंग दीज डिजिट्स. सो दैट विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ठीक है. अब इन सभी में से हमें वो नंबर्स काउंट करने हैं जो कि 2 से डिविजिबल हैं. वो अपने फेवरेबल केसेस हो जाएंगे. ठीक है. अब 2 से डिविजिबल कोई नंबर कब होगा जबकि यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 वगैरह आए. तो यहाँ जो डिजिट है वो सिर्फ 4 है यहाँ पर जो कि यूनिट प्लेस पर आ सकती है, जिससे कि जो 7 डिजिट का नंबर हम बनाएं वो इवन नंबर हो, 2 से डिविजिबल हो. तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं और यहाँ पर अपने को एक 4 को फिक्स करना होगा क्योंकि हमें इन डिजिट्स का यूज करना है. 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, सिर्फ 4 आएगा. तो एक 4 को हमने फिक्स कर दिया. तो अपने जो फेवरेबल केसेस होंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. These are the favorable cases and therefore the probability will be favorable cases upon total number of elements in the sample space, that is 7 factorial upon 2 factorial 3 factorial 2 factorial. ठीक है बच्चों. और इसे आप सिंप्लीफाई कर लें सो यू विल गेट 3/7. सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो बच्चों अब सेक्शन बी देखें जिसमें कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं. सो दिस इज और क्वेश्चन नंबर 1. इसमें दे रखा है कि z be those complex numbers which satisfy mod of z plus 5 less than equals to 4. तो mod of z plus 5 less than equal to 4 का मीनिंग कि सर्कल जिसका सेंटर -5, 0 है और रेडियस 4 है उसके अंदर के सारे पॉइंट्स. ठीक है. और this is the equation of the straight line and we can arrange this equation as कि z plus z bar plus iota z minus z bar plus tan greater than equal to 0.
z को अगर हम x प्लस आयोटा y कहें हम, तो z प्लस जेड बार इज 2x, z माइनस जेड बार इज 2 आयोटा y प्लस 10 greater than equal to 0. So it is x minus y plus 5 greater than equal to 0. और x माइनस वाई प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो ये वाला रीजन होगा, ठीक है ना। तो सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स और दूसरा x माइनस वाई प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों में जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये वाला कॉमन रीजन है, ठीक है। सर्कल का सेंटर -5,0 है और दिस इज द पॉइंट -1,0। अब अपने से पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 होल स्क्वायर। So what is the meaning of mod of z plus 1 whole square? कि that is the square of the distance between -1,0 and z. z का मतलब ये सारे पॉइंट्स जो कि हमने शेड करके दिखाए हमने, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है -1,0। तो हमें mod of z plus 1 होल स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है, यानी अपने को क्या निकालना है कि we have to find the maximum value of the square of the distance between -1,0 and z। और वो आप सोच सकते हैं कि -1,0 का z से मैक्सिमम डिस्टेंस तब होगा जबकि ये वाला जो पॉइंट P है इट इज द z, इट इज बिकमिंग z। तो हमें ये P के अगर कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड दिस स्ट्रेट लाइन। तो हमने P के ये कोऑर्डिनेट्स निकाले, सो इट इज -5, -2 रूट 2, इट इज -5, -2 रूट 2, -2 रूट 2, राइट। सो ये P पॉइंट आ गया, Q पॉइंट -1,0 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला और इसका स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज PQ स्क्वायर एंड दैट विल बी 32 प्लस 16 रूट 2। और यहां पर हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा रूट 2, तो जो अल्फा है दैट विल बी 32 एंड बीटा इज 16 एंड देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 48। सो आंसर इज 48। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 कि let the normal at all the points on a given curve pass through a fixed point a comma b. Suppose the equation of normal is ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल a comma b से पास हो रहा है। और it is b minus y is equal to dx upon dy x minus a. So we can write b minus y dy is equal to x minus a dx। ठीक है बच्चों, अब दोनों साइड्स को हमने इंटीग्रेट किया, सो वी गेट by minus y square upon 2 is equal to x square upon 2 minus ax plus c। तो ये कर्व की इक्वेशन आ गई। अब इन्होंने कहा है कि ये जो कर्व है 3, -3 से पास हो रहा है, तो इसमें 3, -3 को हमने सेटिस्फाई कराया, सो दिस इज द पॉइंट P 3, -3। तो 3, -3 को यहाँ सेटिस्फाई कराया हमने, सो वी गेट -3b -9/2 इज इक्वल टू x की जगह 3 रखना है, 9/2 -3a plus c। So from here we are getting the equation कि 3a minus 3b minus c is equal to 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल रही है 3a minus 3b minus c is equal to 9। फिर दूसरा पॉइंट है 4, -2 रूट 2।
इस पॉइंट को भी यहाँ सेटिस्फाई कराया, तो y की जगह -2√2 रखना है और x की जगह 4 रखना है ना। तो इट बिकम्स -2√2b, y की जगह -2√2 रखा तो इट बिकम -8/2 यानी कि -4 इज इक्वल टू x की जगह 4 रखा, सो 8 -4a plus c. So it is 4a minus 2√2b minus c is equal to 12. ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। सो एक इक्वेशन तो ये वाली है 3a minus 3b minus c is equal to 9, और ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। और यहां इन्होंने दे रखा है कि a minus 2√2b वो 3 के बराबर है। So we can write this equation as 4a or minus 2√2b can be replaced by 3 minus a. So plus 3 minus a minus c is equal to 12. So we get 3a minus c is equal to 9. Okay, here we are getting 3a minus c is equal to 9. ठीक है बच्चों, अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल गेट b इज इक्वल टू 0, राइट। और जब b 0 है सो बाय दिस रिलेशन वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू 3, और जब a 3 है सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग c इज इक्वल टू 0. So a is 3, b is 0 and c is 0. So the value of this expression a square plus b square plus ab, and this is equal to 9. So the answer is 9. In question number 3, okay, alpha and beta are two real numbers such that alpha plus beta is equal to 1 and alpha beta is equal to -1. So we can form the quadratic equation whose roots are alpha and beta, and that will be x square minus x minus 1 is equal to 0. इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, सो फ्रॉम हियर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, और ये अपने को pn दे रखा है कि अल्फा रेज टू पावर ऑफ n प्लस बीटा रेज टू पावर ऑफ n। pn माइनस 1 की वैल्यू 11 दे रखी है और pn प्लस 1 इज 29. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ pn स्क्वायर, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है बच्चों, तो यहां जो ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 दिया हुआ है, मैंने दोनों साइड्स को अल्फा पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब अल्फा पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया सो इट विल बिकम अल्फा पावर n is equal to alpha power n minus 2 into alpha plus 1. तो alpha raised to power of n is equal to alpha raised to power n minus 1 plus alpha raised to power of n minus 2. And similarly beta square is equal to beta plus 1 है, दोनों साइड्स को मैंने beta power n minus 2 से मल्टीप्लाई किया, so we will get beta power n is equal to beta power n minus 1 प्लस बीटा पावर n माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने से अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n बना, वो pn के बराबर होगा। अल्फा पावर n माइनस 1 प्लस बीटा पावर n माइनस 1 दैट इज pn माइनस 1, एंड सिमिलरली अल्फा पावर n माइनस 2 प्लस बीटा पावर n माइनस 2 दैट इज pn माइनस 2। हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं वो pn माइनस 1 और pn प्लस 1 की वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, सो मैंने यहां पर n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया, सो इट बिकम्स कि pn प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह n प्लस 1 रखा हमने, सो pn n की जगह n प्लस 1 रखा तो pn माइनस 1, एंड नाउ pn प्लस 1 इज 29, pn माइनस 1 इज 11 and therefore pn is equal to 18, और अपने को pn स्क्वायर निकालना है,
So Pn square is equal to 324. So the answer is 324. तो बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसे हम टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं. सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. एक इंटीग्रल दे रखा है IMN, ठीक है, मैं इसे I1 कहूंगा मैं, कि I1 इज इंटीग्रल 0 से 1 x पावर m माइनस 1 1 माइनस x पावर n माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, और ये वाला जो इंटीग्रल है इसे मैं I2 कह रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, I2 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ I1. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, तो यहां अपनी जो सोच रहेगी, हमें किस डायरेक्शन में हमें सोचना है कि ये जो I1 है इसे हम सिंप्लीफाई करते करते हम I2 की फॉर्म में ले आएंगे हम, कि वी विल राइट दिस I1 इन टर्म्स ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ I2. ठीक, सो हियर वी आर डूइंग द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस t, यानी dx इज माइनस dt अपॉन 1 plus t whole square. So this I1 will become infinity से 0, x की जगह हमने लिखा 1 अपॉन 1 प्लस टी, तो ये हो गया 1 प्लस टी की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी पावर n माइनस 1, और dx की जगह हमने लिखा माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर. सो I1 विल बिकम इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी. जब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम चेंज करेंगे तो बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और एक नेगेटिव साइन यहाँ पर है तो वो प्लस हो गया वो. ठीक है, सो वी गेट t रेज टू पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी पावर m प्लस n dt. बच्चों ये जो I1 लिखा हुआ है, यहां मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करके x को रिप्लेस किया 1 माइनस x से. सो दिस I1 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज इंटीग्रल 0 से 1, x की जगह हमने डाला है 1 माइनस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, एंड इट विल बिकम x रेज टू पावर ऑफ n माइनस 1 dx. ठीक, अब इस इंटीग्रल में फिर हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी. तो जब हमने यहां सब्स्टिट्यूशन किया तो अपने को ये वाली चीज मिल रही थी. ठीक है, मतलब ये वाला जो I1 है और ये वाला I1, दोनों में सिर्फ m और n का डिफरेंस है, कि यहाँ x की पावर n माइनस 1 है और यहाँ x की पावर m माइनस 1 है. यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन के बाद अपने को ये I1 मिला. तो ऐसे ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो I1 मिलेगा, दैट विल बी इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी t की पावर में m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी पावर m प्लस n dt. ठीक है बच्चों, अब हमने इन दोनों I1 को हमने ऐड कर दिया. सो वी गेट 2I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी t पावर m माइनस 1 प्लस टी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n dt. अपना टारगेट क्या है कि I1 को इन टर्म्स ऑफ I2 लिखना, और जो I2 है उसमें जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 से 1 है, और यहां लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी आ रही हैं. सो आई कैन ब्रेक दिस इंटीग्रल एज कि 2I1 इज इक्वल टू
इंटीग्रल 0 से 1 t पावर m माइनस 1 प्लस t पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t पावर m प्लस n प्लस इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी t पावर m माइनस 1 प्लस t पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t पावर m प्लस n dt। तो ये लिखा हुआ है कि 2i1 इज इक्वल टू, अब बच्चों ये जो इंटीग्रल 0 से 1 t पावर m माइनस 1 प्लस t पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t पावर m प्लस n dt, ये वाला जो इंटीग्रल लिखा हुआ है ये वही इंटीग्रल है जिसे कि यहां पर हमने i2 कहा हमने, राइट। तो इसकी जगह तो मैंने i2 मैंने लिख दिया प्लस, और इस इंटीग्रल को हमने i3 कह दिया हमने, ठीक है। अब इस i3 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये जो i3 इंटीग्रल है इसे हमने i3 कहा हुआ है, यहां मैंने सब्स्टिट्यूशन किया t इज इक्वल टू 1 अपॉन z, यानी कि dt इज इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जो i3 है दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 तो z इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन t इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी z विल बी 0। t की पावर m माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन z की पावर m माइनस 1, t की पावर n माइनस 1 का मीनिंग 1 अपॉन z की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन z पावर m प्लस n इंटू, और dt का मीनिंग माइनस डी जेड बाई जेड स्क्वायर। तो यहां भी मैंने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज किया, तो बाहर नेगेटिव साइन आएगा और नेगेटिव साइन ये, तो दोनों मिला के पॉजिटिव हो गया। सो i3 बिकम्स इंटीग्रल 0 से 1, ठीक है, और एलसीएम वगैरह लेके इसको आप सिंप्लीफाई करें, सो इट विल बी z पावर m माइनस 1 प्लस z पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस z पावर m प्लस n dz। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये वाला जो इंटीग्रल है क्या ये वही है जैसे हमने i2 कहा था हमने। सो i3 इज इक्वल टू i2, क्योंकि वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z लें t लें कुछ भी लें हम, ठीक है। एंड देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स कि 2i1 इज इक्वल टू i2 प्लस i2 दैट इज 2i2 एंड देयरफॉर i1 इज इक्वल टू i2, और यहां लिखा हुआ है अल्फा i1 इज इक्वल टू i2 एंड देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू 1। सो दैट इज द आंसर। बच्चों क्वेश्चन अच्छा है लेकिन काफी लेंथी क्वेश्चन है, वी कैन पुट दिस क्वेश्चन इन द कैटेगरी ऑफ टफ क्वेश्चन, डेफिनेटली इट इज अ टफ क्वेश्चन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if the arithmetic mean and geometric mean of the pth and qth terms of the sequence satisfy the equation 4x square minus 9x plus 5 is equal to 0, then we have to find the value of p plus q। तो बच्चों ये gp है जिसकी फर्स्ट टर्म -16 है और कॉमन रेशो -12 है, ठीक है। तो इसकी अपने को pth टर्म लिखनी है, दैट इज -16 इंटू -12 पावर p -1, और qth टर्म tq इज -16 -12 रेज टू पावर ऑफ q -1। अब TP और TQ का अरिथमेटिक मीन A दैट इज TP प्लस TQ अपॉन 2, और TP और TQ का ज्योमेट्रिक मीन G दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ TP एंड TP इंटू TQ, ठीक है। अब ये जो A और G हैं दे आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन,
So a plus g is 9/4 and a into g is 5/4. So now we can solve these two equations. We will get a is equal to 5/4 and g is equal to 1. हो सकता है कोई ये सोचे कि we can take a is equal to 1 and g is equal to 5/4. तो बच्चों ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है. So we cannot take a is equal to 1 and g is equal to 5/4. So we have to take a is equal to 5/4 and g is equal to 1. So g is equal to 1 means कि square root of tp tq is equal to 1, यानी कि tp tq equals to 1. tp into tq, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, so we get 16 square into minus half की पावर में p plus q minus 2 and this is equal to 1. Or we can write कि minus half raised to the power of p plus q minus 2 is equal to minus half raised to power of 8. So p plus q minus 2 is equal to 8 and therefore p plus q is equal to 10. So the answer is 10. In question number 6, the total number of 4-digit numbers whose greatest common divisor with 18 is 3. यानी जो 18 है that is 3 into 3 into 2. तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए 4-digit नंबर्स जिनका कि 18 के साथ हम GCD निकालें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालें, तो वो 3 आना चाहिए. तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो रिक्वायर्ड नंबर है 4-digit नंबर, द रिक्वायर्ड 4-digit नंबर should be multiple of 3, ऑड होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, बट नॉट मल्टीपल ऑफ 9, बट नॉट मल्टीपल ऑफ 9. तो जो 4-digit के जो नंबर्स हैं वो कैसे होने चाहिए कि दैट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 9. तो ऐसे नंबर का जब हम HCF निकालेंगे या GCD निकालेंगे 18 के साथ तो वो 3 आ जाएगा. ठीक है, तो अब हम काउंट करना स्टार्ट करें. सो फर्स्ट वी फाइंड द नंबर ऑफ 4-digit numbers which are multiple of 3 and odd, राइट. तो 4-digit के नंबर काउंट करना स्टार्ट करें जो 3 के मल्टीपल हो और ऑड हो. ठीक है, जैसे 1001 तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, 1003 वो भी 3 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि अपने को चाहिए ऑड. ठीक है, फिर 1004 वो तो इवन आ गया, 1005 ये ऑड हो गया और 3 का मल्टीपल हो गया, सो 1005. अगला नंबर होगा 1011 और फिर ये कॉमन डिफरेंस 6 आता जाएगा ये, और इस तरह से लास्ट में 9999 ये नंबर हो गया. ठीक है, अब ये कितने नंबर्स हैं इनको काउंट करके देख लेते हैं. सो एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 1005 है, कॉमन डिफरेंस 6 है,
और लास्ट टर्म 9999 है. So 9999 is equal to A plus n minus 1 into D. ठीक है बच्चों, और जब यहां से आप n की वैल्यू निकालेंगे so that will be 1499. ये n की वैल्यू है. यानी ये जो सीरीज बन रही है 1005, 1011, इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं 1499. अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 4 डिजिट के वो नंबर्स भी आ गए जो कि ऑड हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि 3 के मल्टीपल तो उसमें वो नंबर्स भी आ गए जो कि 9 से डिविजिबल हैं. लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो 9 से डिविजिबल ना हो. तो अब हम 4 डिजिट के वो नंबर्स निकालें जो 9 से डिविजिबल हैं एंड ऑड हैं. सो नंबर ऑफ 4 digit numbers which are divisible by 9 and odd. तो इसमें जो सबसे पहला नंबर आएगा वो है 1017. इसके आगे 1035 और इस तरह से ये 9999. तो फिर इन नंबर्स को काउंट करें. एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1017 है, कॉमन डिफरेंस 18 है, और जो लास्ट टर्म है वो 9999 है. तो जिस तरह से यहां हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाली उस तरह से यहां निकालें हम. सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 499. हियर नंबर ऑफ टर्म्स is equal to 499, and therefore the required number of 4 digit numbers that will be equal to 1499, और इसमें से subtract कर दें 499, so 1000. So our answer is 1000. So now in this question number 7th, L is a common tangent line to the curve, और ये कर्व एक एलिप्स है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज अ सर्कल कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 31 अपॉन 4. ठीक है. सो एल इज ए कॉमन टेंजेंट टू दीज टू कर्व्स देन द स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट. So we can assume the equation of tangent for any one of the curve. हमने एलिप्स के लिए हमने टेंजेंट की इक्वेशन एज्यूम की कि y is equal to mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So it means here it is 9m स्क्वायर प्लस 4. ठीक है बच्चों. अब ये वाली जो लाइन है that is the tangent for this circle also. So apply the condition of tangency. तो condition of tangency क्या होगी कि सर्कल के सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस. तो सर्कल का सेंटर 0,0 है, तो 0,0 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9m स्क्वायर प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, and that is equal to the radius. The radius is root 31 upon 2. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, स्क्वायरिंग किया दोनों साइड्स का, सो वी गेट 4 टाइम्स 9m स्क्वायर प्लस 4 is equal to 31 times 1 plus m square. So it is 36m square plus 16 is equal to 31m square plus 31. So from here we are getting 5m square is equal to 15, and therefore m square is equal to 3. और अपने से m square की वैल्यू ही निकलवाई है, and therefore the answer will be 3. In question number 8,
let a is an integer such that all the real roots of this polynomial, say this is y is equal to 2 times x power 5 plus 5x power 4 plus 10x cube plus 10x square plus 10x plus 10 lie in the interval a comma a plus 1 then mod of a is equal to। ठीक है बच्चों, तो पहले इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, देखें इसका ग्राफ किस टाइप का होगा। तो मैंने dy by dx निकाला, सो dy by dx इज 10x पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10, और इट इज 10 टाइम्स x पावर 4 plus 2x cube plus 3x square plus 2x plus 1, or we can write this equation as 10 we can write this as 10 times x square plus 2x plus 3 plus 2 by x plus 1 upon x square, or it is 10x square plus 1 upon x square plus 2 times x plus 1 by x plus 3, यानी कि लिखा हुआ है 10x square x plus 1 upon x whole square -2, और -2 को 3 के साथ क्लब करेंगे तो वो +1 हो गया, तो यहां अपने को मिला +2 टाइम्स x plus 1 upon x प्लस 1, यानी ये लिखा हुआ है कि 10x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो जो dy बाई dx है ये अपने को मिल रहा है 10x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यानी इसका मीनिंग कि अपना जो गिवन फंक्शन है that is the increasing function, that is the increasing function। और x की पावर 5 है, so when x is approaching to infinity the y will be approaching to infinity, when x is approaching to minus infinity y will be approaching to minus infinity, और x अगर 0 है तो y की वैल्यू 10 आ रही है, and therefore the rough sketch will be the curve will be the like this, ऐसा कुछ ग्राफ अपने को मिल गया। तो यहां से ये पता चल रहा है कि एक रूट होगा और वो नेगेटिव होगा, तो एक रूट होगा और वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हमने ये वाला इंटरवल निकालना है a, a प्लस 1 कि ये वाला जो रूट है वो किस इंटरवल में आ रहा है। तो मैंने यहां पर f ऑफ -1 निकाला कि वी आर फाइंडिंग f ऑफ -1, ठीक है, ये fx है ये, तो f ऑफ -1 का मीनिंग वी विल गेट दैट इज -2 प्लस 5 -10 प्लस 10 -10 प्लस 10, तो ये अपने को ये 3 मिल रहा है, यानी f ऑफ -1 इज 3, राइट। इफ आई फाइंड f ऑफ -2, तो बच्चों जब आप f ऑफ -2 निकालोगे तो आप देखोगे ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, यानी f ऑफ -1 पॉजिटिव है और f ऑफ -2 नेगेटिव है, and therefore by intermediate value theorem
at least one root will lie between -2 and -1. By intermediate value theorem, at least one root will lie between -2 and -1. लेकिन अपना जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब -2 और -1 के बीच में सिर्फ एक रूट आएगा। तो जो अपना जो इंटरवल है दैट इज -2 से -1, द इंटरवल इज -2 से -1 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज -2 एंड देयरफॉर मॉड ऑफ a जो कि अपने से पूछा गया है, सो मॉड ऑफ a विल बी इक्वल टू 2. सो आंसर इज 2. दिस इज द आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 9th, there are 18 observations such that sigma xi minus alpha, that is 36, and sigma xi minus beta whole square is 90. Alpha and beta are distinct. Standard deviation is 1. Then we have to find the value of mod of alpha minus beta. So it is given कि sigma xi minus alpha is equal to 36. इसे हमने break किया. So it is sigma xi minus, और अल्फा 18 टाइम्स है, so it become -18 alpha and this is equal to 36. So from here we get sigma xi is equal to 18 को कॉमन लेते हुए 18 टाइम्स अल्फा प्लस 2. Now we come to the second equation. जब इसे हमने एक्सपेंड किया, so that is sigma xi स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 18 टाइम्स होगा, तो 18 बीटा स्क्वायर मिल गया, -2 बीटा sigma xi and that is equal to 90. So it is sigma xi square plus 18 beta square minus 2 beta, and sigma xi from here it is 18 times alpha plus 2 and that is equal to 90. तो बच्चों यहां से हमने सॉल्व करके sigma xi स्क्वायर निकाल लिया, that is a equation number 2. अब दूसरा में यहाँ पर दे रखा है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है that is 1. So standard deviation is 1, तो जो वेरिएंस है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, राइट. तो वेरिएंस इज 1 एंड दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/n सिग्मा xi स्क्वायर. n इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 है, सो 1/18 सिग्मा xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन का मीनिंग सिग्मा xi अपॉन 18 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1. तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया. सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू यहां से ये पूरी सब्स्टिट्यूट की, सिग्मा xi की वैल्यू 18 टाइम अल्फा प्लस 2 यहां हमने सब्स्टिट्यूट की और पूरी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया. सो वी गेट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -4 एंड देयरफॉर मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 4. तो बच्चों क्वेश्चन आसान है. जो अपने मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के जो फॉर्मूले हैं उसी का यूज है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है. So that is a easy question. Now in question number 10th, we are given a matrix A which satisfy this equation for some real number alpha and beta. Then we have to find the value of beta minus alpha. तो बच्चों अपने को किस डायरेक्शन में सोचना है कि हमें a raised to power 20 मिल जाए, a पावर 19 मिल जाए. So a पावर 19 और a पावर 20 निकालने के लिए वी विल फाइंड a स्क्वायर, a क्यूब, a पावर 4, और फिर कुछ सिमेट्री ऐसी दिखेगी अपने को जिसके आधार पर हम कह पाएंगे कि a पावर 19 और a पावर 20 क्या होगा. सो हमने a स्क्वायर निकाला, दिस इज द मैट्रिक्स a स्क्वायर. फिर हमने a क्यूब निकाला, दिस इज द मैट्रिक्स a क्यूब. a पावर 4, दिस इज द मैट्रिक्स a पावर 4. ठीक है. अब जैसे हम a स्क्वायर और a पावर 4 को देखें, a स्क्वायर और a पावर 4 सारे एलिमेंट सेम है, सिर्फ यहाँ 16 आ गया और यहाँ 4 आ गया. तो जब मैं a स्क्वायर कह रहा हूं तो यहाँ 4 आ रहा है यानी कि 2 स्क्वायर, और जब मैं a पावर 4 कह रहा हूं तो 16 आ रहा है यानी कि 2 की पावर 4 आ रहा है. जब मैं a की पावर 6 बोलूंगा तो यहाँ 2 की पावर 6 आ जाएगा. जब मैं a की पावर 20 बोलूंगा तो यहाँ 2 की पावर 20 आ गया. तो जो a पावर 20 मैट्रिक्स है वो ये वाली मैट्रिक्स हो गई. ठीक है. अब हम a पावर 19 के लिए देखें.
तो a की पावर 3 यहां 2 क्यूब आ रहा है, यहां पर ये जो 8 है दैट इज 2 क्यूब। अगर हम a की पावर 5 निकालते हैं तो यहां 2 की पावर 5 आ जाता है यहां पर, बाकी 3 0 माइनस 1 ये एज इट इज रहता। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से कि a पावर 19 जो मैट्रिक्स होगी उसमें जैसे यहाँ 2 क्यूब आ रहा था तो यहाँ 2 की पावर 19 आ गया, और बाकी 3 0 माइनस 1 फर्स्ट रो में 1 0 0। सो दैट इज a पावर 19 मैट्रिक्स एंड दिस इज a पावर 20 मैट्रिक्स, राइट। तो अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है a पावर 20 प्लस अल्फा टाइम्स a पावर 19 प्लस बीटा a, सो दैट विल बी सिंप्लीफाइड टू a की पावर 20 का मीनिंग कि 1 0 0 0 2 पावर 20 0 0 0 1 प्लस अल्फा टाइम्स a पावर 19 का मीनिंग 1 0 0 0 2 पावर 19 0 3 0 माइनस 1, और बीटा a का मीनिंग प्लस बीटा और a मैट्रिक्स जो कि अपने को दे रखी है कि 1 0 0 0 2 0 एंड 3 0 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो जब मैं इसे ऐड करूंगा सो व्हाट वी विल गेट 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है। दूसरा एलिमेंट या 0, ये 0, here it will be 0, then 2 raised to power of 20 plus alpha times 2 raised to power 19 plus 2 beta, then 0. Here we will get 3 alpha plus 3 beta. Here we will get 0. Here it is 1 minus alpha minus beta. तो यहां भी ये लिखा हुआ है सेम, और फिर हमने ये कहा है कि ये जो रिजल्ट यहां पर आया, ये वाली जो मैट्रिक्स आई कि दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0 4 0 0 0 1. So when these two matrices are equal, we will get the relations कि 1 plus alpha plus beta is equal to 1, यानी कि alpha plus beta is equal to 0. Another relation कि this will be equal to 4, तो ये relation लिखा हुआ है कि 2 raised to power 20 plus alpha times 2 raised to power 19 plus 2 beta is equal to 4. From here we will get कि 1 minus alpha minus beta is equal to 1, that is alpha plus beta is equal to 0, वो ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, और 3 alpha plus 3 beta is equal to 0 means alpha plus beta is equal to 0 ऑलरेडी हम ये लिख चुके हैं। तो कुल मिला के जो कंडीशंस हैं वो ये हैं alpha plus beta is equal to 0, और दूसरी कंडीशन 2 power 20 plus alpha 2 power 19 plus 2 beta is equal to 4. So using these two equations we can find the value of alpha and beta. So from here we put beta is equal to minus alpha here, so that will become 2 raised to power 20 plus alpha 2 raised to power 19, and in place of this beta I am writing minus alpha, so it is minus 2 alpha is equal to 4, or it is 2 raised to power 20 plus alpha times 2 raised to power 19 minus 2 is equal to 4, or from here alpha is equal to 4 minus 2 raised to power 20 upon 2 raised to power 19 minus 2, or we can write this as 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया, यानी कि 2 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, so 1 minus 2 raised to power of 18 अपॉन, नीचे से मैंने 2 को कॉमन निकाला तो 2 पावर 18 माइनस 1
and which is simplified to minus 2. So what we get? Alpha is equal to minus 2. And when alpha is minus 2, your beta will be 2. And therefore, beta minus alpha is equal to 4. So my answer is 4. तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का. So this paper is finished. Thank you.